Hey guys, welcome to my channel. I'm Anushri Agrawal and we are doing organization theory. We have till now completed the organization goal, environment and all the theories like classical, neoclassical and the modern organization theory. Now we are moving to the next chapter, that is organization structure. Okay, before learning organization structure, let us understand what is organization design. Organization design is particularly the combination of two components, that is structure and culture. Let us understand in brief what a structure and culture is. Structure, as the name suggests, it is a more formal way. Structured मतलब बहुत organized होगा, formalized होगा, positions होंगे, roles होंगे, hierarchy होगी. वो उसे हम फॉर्मल सिस्टम ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप को हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. It will determine how people will communicate, how they will cooperate, how they will control and how they will use the resources. तो इन सब टर्म्स पे हमें बहुत सारे नए नए टर्म्स मिलेंगे, जैसे इट विल डिटरमाइन द चेन ऑफ कम्युनिकेशन, द स्पैन ऑफ कंट्रोल, द डिविजन ऑफ वर्क, द हायरार्की एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब चीज मिला के बनता है हमारा स्ट्रक्चर. तो ये बहुत फॉर्मल है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है और we can say it is a kind of hierarchy that it explains. Okay. फिर आता है कल्चर. कल्चर थोड़ा इनविजिबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. ऐसी चीजें जो हमको दिखती नहीं है लेकिन होती है, जैसे जो कॉमन नॉर्म्स हैं, जो मॉरल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देते हैं. लाइक सम ऑर्गेनाइजेशन में हैव द नॉर्म ऑफ कस्टमर इज द किंग, सो दे ले वेरी मच इम्पोर्टेंस ऑन द value of customer, the service that they deliver to the customer satisfaction. तो वो एक value होगी. This will govern the organization members, the interaction with people inside, मतलब employees with each other as well as outside the organization. तो बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे जो particular organization को डिफाइन करती हैं या फिर उसके पाथ को गाइड करती हैं, गवर्न करती हैं. These are particular small norms that any organization may have. Maybe some organization may have the norm or the value of having low cost product. So that will be reflecting in every department of the organization, not only the production department. Every organization will try to cut the cost, and some will have high quality products. So that will also be, we will see in every kind of work that is done in the organization. Thus, every organization has various kind of morals or the values. Like for example, some may have kind of employee satisfaction. So they will strive in order to get the employees satisfied, और हम कह सकते हैं happiness in the organization को वो boost करेंगे by providing like playground, play area or some kind of game zone for the employees in during interval times or etc. Like fresh food to the employees or some other things that may be worked. Like you can have a very friendly kind of environment or infrastructure or interior in your office in order to boost those happiness hormones in your employees. So every organization have got their own culture. एक work culture होता है. Cooperation can be a work culture where every employee work with each other, they cooperate with each other, they help each other in their particular endeavor. And some may have like competition may be there. They may have the atmosphere, the climate or the culture thereof may be very competitive, that every employee is trying to outrace other employees. तो एक तरह का बहुत भयंकर कट थ्रोट competition भी हो सकता है, which may turn out to be really disadvantageous to the organization in the long run, और हो सकता है बहुत फायदेमंद हो organization के लिए. Like for example, Mr. Modi, he also the cooperative federalism की तरफ से we moved to like competitive kind of, in which it was in order to give it a healthy twist, we had competitive federalism in the way of having competitive indexes. Just maybe come to know that which state is more hygienic, more clean, or having good business ethics or something like that means ease of doing business etc. तो उनके इंडेक्सेस हमारे पास आ गए. तो हर तरह का कल्चर हो सकता है जिससे ये these are set of shared or common norms that govern the interaction of the organization members among themselves as well as with the outside environment. Okay, outside the organization. Okay, we'll be doing this in detail in the coming videos. Right now we'll be focusing on organization structure. Okay,
अब ये समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कल्चर दोनों को मिलाते हैं तो बनता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि यही हमको बताएगा कि क्या चेन ऑफ कमांड है, क्या चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, किस तरह से वर्क हो रहा है, क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड हुई हैं। तो दिस विल हेल्प अस, इट विल हेल्प अस टू नो अबाउट द शेयर्ड नॉर्म्स क्या है, उनके वैल्यूज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, वो सब। और इट विल हेल्प इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जिस तरह के स्ट्रक्चर में वो फिट है और जिस तरह के कल्चर में वो वर्क कर रहे हैं वही डिटरमाइन करेगा कि उनका बिहेवियर कैसा होगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट अस गो इन डिटेल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो, हमने बहुत बार ये डेफिनेशन पढ़ी है कि ऑर्गेनाइजेशन इज गोल ओरिएंटेड ह्यूमन ग्रुपिंग्स। बहुत जगह पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दे कम टुगेदर, दे कोऑपरेट विद ईच अदर, दे कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स फॉर ए कॉमन पर्पस और कॉमन गोल। तो वो गोल ओरिएंटेड होती हैं और ह्यूमन ग्रुपिंग्स होती हैं। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर गोल है जिसकी तरफ पूरी ऑर्गेनाइजेशन जाती है। मतलब इफ यू आर हियर टुडे, then this organization always try to achieve one goal, that is the main goal of the organization. Every effort in the organization, everything in the organization is aiming at that particular goal. सब चीजें, हर effort, हर work is channelized towards the achievement of this goal. लेकिन ये गोल होता है जैसे एक प्राइमरी गोल हो सकता है, मेजर गोल्स होता है, उसे हम डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस सेकेंडरी गोल्स, है ना। वो उसके बाद उसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टास्क में, बिकॉज एज सपोज योर गोल इज टू बी लाइक हैविंग मार्केट शेयर, और यू कैन, द गोल कैन बी लाइक high profitability, or whatever your goal is. That goal has to be actually being broken down, more quantified and more measurable. उसे ज़्यादा measurable बनाना होगा, so that every day when you work you come to know कि whether you are reaching a little closer to your goal or not. तो इस वजह से goal को बहुत छोटे-छोटे task में divide किया जाता है ताकि it can roll down to every and each individual in the organization. हर एक एम्प्लॉई का एफर्ट उस गोल की तरफ जाए, तो उसे एक टास्क दे दिया जाए which is more quantifiable, which is more measurable for him, और फिर वो he can also work in towards the achievement of the goal. तो इस तरीके से गोल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अलोकेट किया जाता है। जब गोल को हम फर्दर टास्क में डिवाइड कर चुके होते हैं तो फिर हम उसे बताते हैं कि ये पर्टिकुलर टास्क कौन करेगा, मीन्स हु विल परफॉर्म व्हाट. दिस इज नोन एज वर्क एलोकेशन. मीन्स वंस द गोल आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, दीज टास्क आर बीइंग डेलीगेटेड और these are being allocated to a particular person. एक designated person के पास हमने उसे भेजा है तो वो हो जाएगा who will perform what, या we can say it as work allocation. तो एक fixation of responsibility हो गई वहाँ पे along with authority of course. तो उससे this goal उसकी achievement के chances बढ़ जाते हैं. Okay, this one is clear. So this process of goal allocation, work allocation, it creates a network. Obviously it creates a network in the organization that एक बड़ा goal है उसे हमने further छोटे छोटे 3-4 डिविजन्स में या 3-4 डिविजनल गोल्स में डिवाइड किया. फिर एक जो डिविजनल गोल है उसको हमने फर्दर और जो एम्प्लॉइज हैं उनके या तो ज्योग्राफिकल बेसिस पर किसी बेसिस पर उनको हमने डिवाइड किया. फिर हर एक बंदा यहाँ पे जो है उसके पास गोल गया, फिर इसके अंदर जो 4-5 बंदे हैं उनके पास गोल गया. तो एक प्रॉपर नेटवर्क बन गया कि हर एक बंदे के पास एक गोल है, एक टास्क है, एक वर्क है. सो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ टास्क, positions, responsibilities and roles, authority, etc. Organization structure. I don't think it can be explained in a more simpler way. Okay, अब उसकी definitions देखो. General definition है organization structure depicts the authority and responsibility. देखो, we have done about what is authority and responsibility in one video. I'll put the link here. Okay. उसके बाद ये हमें बताता है who reports to him, है ना, ये वाली चीज हमें बताई जाती है. Then various positions, मतलब मैंने पहले ही बोल दिया, it is more about positions, hierarchy, rules, layers, etc. हम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं स्ट्रक्चर के टाइम पे. अब जो एमिटा एडजोनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें दी हुई है, बहुत इजी और बहुत अच्छी. एमिटा एडजोनी से आपको याद आना चाहिए रैशनैलिटी वर्सेस हैप्पीनेस डिलेमा, बिकॉज ही इज रियली फेमस फॉर दैट और हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की है. फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, इट इज अ डिविजन ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी अमंग ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन एक्सपेक्टेड व्हाटएवर दिस. जस्ट गो थ्रू दिस, इट इज क्वाइट सिंपल. नाउ विल लर्न द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर. देखो ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्ट्रक्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं. इससे आप बहुत की वर्ड्स भी समझ. देखो, डिविजन ऑफ वर्क इन स्पेशलाइजेशन. फर्स्ट डिविजन ऑफ वर्क हमने अब तक पढ़ा है कि क्या होता है कि हम लोगों में डिवाइड कर रहे हैं वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिटी, स्किल्स एक्सेट्रा. सो as we have seen earlier in the previous slide कि गोल allocation में हम गोल्स को डिवाइड किए डिफरेंट टास्क में. फिर उन टास्क
को हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया, वो हो गया डिविजन ऑफ वर्क। सो इसमें एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन द वर्क इज डिवाइडेड अमंग individuals. Okay, this one is pretty clear. Next is departmentation. Once you have divided your goals into smaller tasks, then comes the work of grouping those similar tasks into departments. उससे क्या होता है कि जैसे जो सिमिलर वर्क होते हैं, सिमिलर टास्क होता है, उसे एक डिपार्टमेंट में करने से ना सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होता है आपके लिए, बल्कि उस डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली कॉमनैलिटी ऑफ प्लान होगा, एक्शन होगा, एक जैसा टास्क होगा। एक जैसा टास्क है तो उनका प्लान और एक्शंस सिमिलर और कॉमन होंगे, सो दे विल हैव इजी एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। उसमें दे हैव सो मेनी वर्क, दे लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, यू कैन यूज योर कॉमन रिसोर्सेज, दे कैन बी कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एटसेट्रा एटसेट्रा। डिपार्टमेंटेशन में वी आर टॉकिंग मोर अबाउट दी हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग। देखो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग का मतलब समझिए, जैसे जब ये पर्टिकुलर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसे हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग का, जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग कैसे हुई, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, और जैसे हमने फंक्शन बेसिस पे कर दिया कि ये हो गया फिनेंस डिपार्टमेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये हो गया फंक्शनल ग्रुपिंग, ये हॉरिजॉन्टली चल रही है। देखिए दिस इज नॉट वर्टिकल, यहाँ पे लेयर्स नहीं बना रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटेशन। तो ये जो डिपार्टमेंट 4 पीस के थ्रू हो सकते हैं। गुलिक नाम से कुछ याद आया? गुलिक में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, गुलिक एंड अर्विक जो फॉलोअर हैं हेनरी फ्योल के, उन्होंने पॉट्सकॉप जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एटसेट्रा, वो पॉट्सकॉप जो बहुत ज्यादा की वर्ड है इन मैनेजमेंट, मतलब यू मस्ट हैव हर्ड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, वो गुलिक ने डिजाइन, गुलिक एंड अर्विक ने ही ये वर्ड को डिजाइन किया था, और आई कैन से दे ब्रॉट अप दिस वर्ड। सो गुलिक ने, ही हैज आल्सो गिवन अस द 4 पीस, मतलब जिस तरीके से हम डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं, 4 पीस है। पर्सन्स के बेसिस पे, लाइक अ पर्सन हैंडलिंग अ टीम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो वी कैन डिपार्टमेंटलाइज। देन प्लेस, ज्योग्राफिकल बेसिस पे कि हमारा इंडिया डिवीजन है, ये यूएस डिवीजन है, या इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिवीजन, या फिर ईस्ट डिवीजन, वेस्ट डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन कर सकते हैं। प्रोसेस के बेसिस में जैसे फंक्शंस जो मैंने अभी बताया, फिनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एटसेट्रा। देन कम्स द पर्पस, में है डिफरेंट पर्पस बेसिस, डिफरेंट पर्पसेस, लाइक वन में भी सोशल कॉज के लिए हो सकता है, वन में भी प्रॉफिट मोटिव के लिए, अलग अलग डिफरेंट पर्पस जो आप डील कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटेशन कर सकते हो। मेन इसमें थीम यही है कि हम सिमिलर वर्क को डिपार्टमेंट्स में ग्रुपिंग करें। ओके, तो दे कैन बी सेकेंडरी एंड प्राइमरी लेवल, लाइक ये जो पहला जो हुआ ये प्राइमरी लेवल हो गया, ठीक है। फिर फिनेंस में भी हम 2-3 डिवीजन बना सकते हैं, ये ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवीजन बना सकते हैं कि हमारा ईस्ट जोन है, ये वेस्ट जोन, और ऐसे। या फिर हम कर सकते हैं कि प्राइमरी हम ज्योग्राफिकल बेसिस पे कर लें और सेकेंडरी हम फंक्शनल बेसिस पे कर लें, वो भी हो सकता है। तो इट कैन बी एनी वे राउंड, ओके, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशनल टाइप, साइज एक्सेट्रा, ठीक है। सो इसे कहते हैं हम डिपार्टमेंटेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रेड पढ़ा, जैसे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या था कि हम डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट वर्टिकल स्प्रेड। सी, once I have done with this, then if I have done with this, then I got one, मानो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड किया, ये हो गया एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर प्रोडक्शन में जब हम वर्टिकल स्प्रेड कर रहे हैं कि ही इज द मेन प्रोडक्शन ऑफिस, ये हो गया, फिर असिस्टेंट प्रोफेशनल प्रोडक्शन हो गया, ये सुपरवाइजर्स आ गए, फिर ये आ गए वर्कर्स। तो इसमें ध्यान दीजिए कि सेम ही टास्क कर रहे हैं, सेम ही डिपार्टमेंट में है, लेकिन इसमें लेयर्स बन गए। ये पोजीशंस डिटरमाइन करते हैं कि इट इज एट अ हाई लेवल मैनेजमेंट, इट इज मीडियम लेवल मैनेजमेंट, इट इज लो लेवल मैनेजमेंट, एंड इट इज वर्कर्स जो और नीचे लेवल्स पे आ गए। तो ये डिटरमाइन कर रहा है कि इनके पास क्या क्या पावर है, क्या क्या अथॉरिटी है। सो इट इज द वर्टिकल स्प्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे वेरियस लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग आर क्रिएटेड, तो हम इसे कहते हैं हायरार्की। ये जो हायरार्की क्रिएट हुई है, ये हमको दिखाती है डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग यूनिट्स कौन कौन सी है, कौन डिसीजन मेकिंग करता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन शो करता है कि टॉप टू बॉटम तो हो रहा है, ऑर्डर्स फ्लो होते हैं, और बॉटम टू टॉप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती है, ये नीचे जाती है अथॉरिटी।
सी नंबर ऑफ लेवल्स हमको शो करता है। अब आपको यहाँ से याद आएगा हमने एक चीज पढ़ी थी, टॉल वर्सेस फ्लैट स्ट्रक्चर। ये हमने मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था और कई जगह हमने पढ़ा है। टॉल मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे लेवल्स बहुत ज्यादा है, मतलब देयर आर सो मेनी एम्प्लॉइज वर्क इन सो मेनी पोजिशन बीइंग क्रिएटेड, है ना, हायरार्की इज लॉन्ग, वो हो गया टॉल। फ्लैट में क्या हो गया कि लेवल्स आर लेस। ओके, सो अब देखो आपको अगर यहाँ जो स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने कहीं पढ़ा था, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ, विल बी, दिस इज अ लास्ट वन विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक एम्प्लॉय के अंडर, एक सुपरवाइजर या सुपीरियर के अंडर काम कर रहे हैं। तो देखो मैंने लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज हाइपोथेटिकली 15 एम्प्लॉय है। तो अगर आप टॉल स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा, क्योंकि लेयर्स ज्यादा होंगे। लेयर्स ज्यादा होंगे तो हर एक जैसे एक इतने लेयर है, यहाँ पे मानो हमने लेयर्स ज्यादा होंगे तो हर एक जैसे एक इतने लेयर है, यहाँ पे मानो हमने तीन लोगों को प्लेस कर दिया, तो हर एक बंदे के नीचे मान लीजिए ये 4 लोग हैं, ठीक है, जो और यहाँ पे हर एक बंदे के नीचे एक जन हो गया या फिर एक बंदा खाली रह गया, इस तरह से हो गया, तो हर एक बंदे का स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम 15 दिन में सिर्फ 2 ही लेयर्स बनाते हैं तो देन यहाँ पे मानो 3 ऊपर 3 है, तो नीचे हर एक बंदे के पास कितने होंगे, 5 होंगे, जब जाके वो 15 बनेंगे, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे ज्यादा है। तो यह समझ लीजिए कि टॉल स्ट्रक्चर के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता है और फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है, गिवन द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आई एम श्योर दिस इज क्वाइट क्लियर। ध्यान रखिए, टॉल स्ट्रक्चर मतलब हो गया ज्यादा नंबर ऑफ लेयर्स और नंबर ऑफ पोजीशंस और हायरार्की। फ्लैट में हो गया लेस नंबर ऑफ पोजीशंस। ओके, और स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब कितने एम्प्लॉयज एक के अंडर काम करेंगे। एंड आई थिंक यू कैन गेट दिस नाउ। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, देखिए जैसे आप हायरार्की क्रिएट करते हो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आती है, यू गेट सम काइंड ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, क्योंकि आपने सुपीरियर बनाए हैं, सबऑर्डिनेट बनाए हैं। हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल में बात की इन आवर प्रीवियस वीडियोस। आई विल गिव अ लिंक हियर and just go through that video and you'll come to know that every responsibility must carry some authority. Authority also comes up with some responsibility, and there has to be a balance between authority and responsibility. Okay, next is span of control. By now you know what is span of control. It is the number of subordinates which a superior can effectively manage and supervise. कितने number of subordinate एक superior के पास होंगे। अगर skilled आपके पास सबऑर्डिनेट्स हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल आप ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि आपको सुपरविजन की कम जरूरत रहेगी। अगर अनस्किल्ड सबऑर्डिनेट्स हैं, इन दैट केस यू नीड टू हैव मोर सुपरविजन, मोर सर्विलेंस, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कम रखने पड़ेंगे, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा। स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे सब कुछ फिक्स हो, सुपीरियर के टाइम पे सब कुछ फिक्स होता है, सब कुछ डेफिनेट है, सब कुछ क्लियर है, एक एक चीज बताई गई है एम्प्लॉय को, उस समय इतना ज्यादा सुपरविजन, इतना ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा भी हो सकता है। मतलब देयर कैन बी मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर द सेम सुपीरियर। Discretion में when you are giving freedom to employees to work, then you need to check, you need to control, you need to assist them, you need to guide them at times. So उस केस में you need to have a small span of control, कम number of individuals आपको चाहिए, so that you can easily guide them, manage them, control them. तो उसमें span of control आपका कम होगा. I hope I am clear on this. So this brings me to the end of this particular video. Next video will be talking about the types of organizational structure, line structure, matrix structure, product structure, etc., etc. And if you like this video, you understood the things that I have explained in this video, please give me a thumbs up. Share this video with your friends so that more and more people can get educated themselves through this free medium. And subscribe to the channel. Till my next video, stay healthy.